The fourth person on our panel is, a younger brother, a close friend, Irfan, who runs another software house, again, one of the largest in Pakistan, a fastest growing, called Zeven Solutions. Amongst other things that he is doing a lot of work in health tech, fintech, etc. Plus, one of the, an introduction that I love about Irfan is that he is doing a lot of work when it comes to talent development in terms of Web 3.0, data science, analytics, and all these areas. So he's also a trainer, and he's doing a lot of work in those areas as well. Thank you very much, Irfan. इरफान, आप ब्लॉकचेन्स और वेब 3.0 पे भी काम कर रहे हैं. सो मेरा आपसे जो क्वेश्चन ये है कि हम सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए, डू यू यूज दीज न्यू tech terms like Web 3.0, blockchains in your own business currently? Yeah, absolutely. When we are talking about business, there is something common. कोई भी business हो, किसी भी business की survival हो या growth हो, कोई भी business तब grow कर सकता है जब वो value दे रहा. And when we are talking about value, we are talking about data. Data is the next big thing. कोई भी ऐसी organization नहीं है जिसके पास data ना हो. The problem is, on average, we have 80% unstructured data on average in all the organization. It's not about unstructured data only. एक problem ये है कि हम लोग data capture नहीं कर रहे, waste कर रहे हैं. So when we are talking about these latest technologies like blockchain, data science, what blockchain gives you? Blockchain gives you security, privacy. And using data science, you can get a decision power that you cannot get, from using Excel sheets, using pre-meditated formulas. So if you have the information, if you have the power, you can make better decisions. मैं example दूंगा यहाँ पे Parkville की. So let's say अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदनी है और मैंने Parkville टीम को invite किया है कि मुझे ये गाड़ी इंस्पेक्ट कर दें और मुझे बताएं कि क्या है, वो 9.8 रेटिंग दे देते हो, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, बाद में स्टार्ट ही नहीं होती. सो पहला ब्लेम तो मैं सुनील साहब को करूंगा कि सुनील साहब, आपकी टीम ने मेरे साथ ये किया है और मेरे पैसे डूब गए हैं, and I'm not going to use your application anymore. So I'm not complaining, I'm just trying to give you an example. So ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ. उनको गुस्सा आना शुरू हो गया था. So what is happening? What I'm going to say, don't consider it selling. I'm not trying to sell something here. See what is happening. एक बहुत बड़ा बिजनेस है Parkville. अब जब Parkville 4 लोगों की टीम भेज रहा है फील्ड पे, रिलाय किस पे हम कर रहे हैं? उन 4 लोगों पे जो गाड़ी इंस्पेक्ट कर रहे हैं. वो कौन लोग हैं? वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो कितने रिलायबल हैं? सो द रेपुटेशन जो है उस पूरे बिजनेस की उन 4 लोगों के फीडबैक पे वो जो लिख के एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में भेज रहे हैं. इतना बड़ा बिजनेस उस वक्त उन 4 लोगों की रिपोर्ट पे रिलाय कर रहा होता है. मेरी एक पूरी डील हो सकता है, वो जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ मेरी 10 साल की सेविंग हो. What data science can do, what blockchain can do, what deep learning can do within a data science, कि ये जो human errors है, human dependability है, इसको reduce कर देती है, accuracy level, reliability बढ़ा देती है. जहां आपने एक दिन में 10 गाड़ियों के inspection करते, you can do it 100 cars, more than this. Problem क्या है? Problem ये है कि Badr Saab is here. I'll try to communicate my problem to him as well. I'm going to different universities. आज हम काम कर रहे हैं सिलेबस पे. किस सिलेबस पे काम कर रहे हैं? PHP, पुरानी टेक्नोलॉजीज को आज ठीक कर रहे हैं. When we are talking data science, nobody knows what to teach. हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, करना क्या है? तो प्रॉब्लम इज दैट आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ खड़े करके मुझे पता है, बट आई विल आस्क वन क्वेश्चन. सोच क्या रहे होते हैं? कहाँ जॉब करनी है, कितने की जॉब करनी है, किस फील्ड में जॉब करनी है. ये एक थॉट प्रोसेस है. ये सोचना है आज आप सबको कि कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है. दैट्स इट. इफ यू कैन थिंक प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सोल्यूशन सोच सकते हैं, तो आपको किसी जॉब की जरूरत नहीं है. you don't need any job. अब बात करते हैं Web 3.0 की. When we are talking about problem, when you're talking about solution,
Web 3.0, including blockchain, AI, machine learning, deep learning, आपको empower करता है existing problems को नए तरीके से solve करने में. Basically, ये technology आपको empower करती है to be an entrepreneur, to be a data scientist, to be a leader instead of an employee, make better decisions. So, अब जो existing business है, हम लोग अगर if you're talking about profitability, what is happening? जो system हम 4 साल से develop कर रहे थे और वो they were in production, develop हो चुके थे. I can safely say that जितने इस वक्त system, including the Parkwheel system, needs data science. What does it mean? So much of a work, business. If you understand the technology, you can pitch it to anyone. What अगर आपने किसी को कुछ pitch करना हो तो what you need to say? You need to identify the pain points. You identify the pain point, you propose the solution, and that's it. You're in. And that is one of the major part in the marketing as well. Marketing क्या है? You cannot sell a bad product. Doesn't matter how good you are at marketing. You cannot sell a bad product. You need to identify the the problem in the market. So existing businesses बहुत फायदा उठा रहे हैं. एक बात अभी मैंने सुनी है, competition, right? So what is happening is when we are talking about data science web 3.0, competition बहुत कम हो गया. When we are talking about .NET and any conventional programming, जब आप internationally चाहे आप product develop कर रहे हैं या आप services agency run कर रहे हैं, बहुत ज्यादा competition है. आपको compromise करने पड़ रहे हैं financials पे हर चीज पे. But when we are talking data sciences, when you're talking blockchain, competition बहुत कम हो गया. That mean opportunities बहुत बढ़ गई हैं. पर हम इस opportunity को waste कर रहे हैं, unfortunately. और इसके दो reasons हैं. Number one, there's a huge gap between academy and the industry. और जब हम data science की बात करते हैं बदर साहब, ये gap और ज्यादा बड़ा हो जाता है. इतना बड़ा हो जाता है कि मैंने अभी एक 45 मिनट की टॉक दी है डेटा साइंस पे, और जब मैंने टॉक खत्म की तो सवाल मुझसे किए जा रहे थे फ्रीलांसिंग पे. तो मुझे यूनिवर्सिटी वालों को कहना पड़ा, यार ऐसा करते हैं अगला सेशन फ्रीलांसिंग का रख लेते हैं, क्योंकि डेटा साइंस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. We are not developing our interest in Web 3.0. We need to understand that उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत नहीं. You need to develop exposure. आज प्रॉब्लम सॉल्वर बने, कल आपके बिजनेस को फायदा होगा. सारे के सारे बिजनेस इससे फायदा ले सकते हैं. I hope that answers the question. जी, thank you, Irfan. इसी से ही related, I would ask you another question. Since you've highlighted कि curricula में issue है, academia industry का एक linkage का एक major challenge है. So अगर कोई startup है जो कि इस opportunity से फायदा उठाना चाहता है, वो कैसे talent को access करे? Because talent तो market में available नहीं. So what would you suggest? Usman bhai, see, there's a lot of talent if you're talking about talent. But what we are talking about talent in that particular field. Talent सब में है. अभी साकिब साहब की एक बात मैंने नोट की, बहुत अच्छी लगी. लीडर सबके अंदर है, हमने उसको बाहर लाना है. टैलेंट मौजूद है आप लोगों के अंदर, उसको बाहर लाने की जरूरत है. सो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं 100 लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूं तो 98 को रिजेक्ट करना पड़ता है. काम बहुत करना पड़ रहा है, हमें 2 जगहों पे काम करना पड़ रहा है. रिसोर्स हायर करने के बाद 3-4 महीने से भी ज्यादा उसको ट्रेनिंग दे रहे हो. अब जब उसको ट्रेनिंग आप देते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर, तो एक बड़ी फिश आती है, बड़ी ऑफर करती है, एंड ही इज गॉन एंड यू आर स्टैंडिंग देयर. एक बहुत रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है फॉर अ स्मॉलर स्टार्टअप टू कम अप. अब ट्रेनिंग इतनी ज्यादा क्यों देनी पड़ रही है? अगेन दैट गैप. So what I am trying to do, this is my initiative, and I will share that I'm going from universities to universities and trying to create awareness about data science, that what you can do wonders. Trust me, you can do wonders with the data science. So what we have to do is, to people who know the data science web 3.0 should share their knowledge, establish their YouTube channel, go to the universities, talk to the people, create awareness. On a government level, we need to talk about data sciences. कितने शोज हैं टेलीविजन पे चल रहे हैं जो टॉकिंग अबाउट वेब 3.0? कितनी कैंपेन्स हैं, कितने एड्स आप लोग देखते हैं, अवेयरनेस एड्स देखते हैं वेब 3.0? पता है हमारी अवेयरनेस की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? अपोलॉजी अगर किसी को बुरा लगता है, हमारी सारी एनर्जी जा रही है जी पाकिस्तान में डॉलर लाने. और जब कोई बंदा 1 लाख महीना कमा रहा होता है तो हम उसको टैग कर देते हैं एज ए सक्सेसफुल पर्सन. क्राइटेरिया, सक्सेस का क्राइटेरिया हमने इतना सा सेट किया होगा. और एक बात जो हाईलाइट किया बदर साहब ने भी, साकिब साहब ने भी, कि सी वी नीड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट द टॉप.
जहां से ये एक ड्रीम सेट होगा, नीचे आएगा। हमारा जो ओवरऑल विजन है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हम फायदा नहीं उठा पा रहे। स्मॉलर स्टार्टअप क्या है, कोई बंदा कैसे क्रिएटिव काम कर सकता है जब वो 2.5 लाख रुपए महीना कमाने के बाद समझता है कि मैं तो सेट हो गया हूँ यार, मुझे क्या चाहिए। तो सक्सेस क्राइटेरिया, तो बेसिकली हमें ये चैलेंजेस एज अ बिजनेस पर्सन, a lot of challenges, something like this. So it's not like we can use it. हम सबको ये करना, from government, including us, including you guys. जैसे कि मैंने, अगर मैं summarize करूं, you need to start, thinking like an entrepreneur. On the other side, someone like me need to start sharing knowledge, and someone at the government level need to start creating awareness, and together we can, create a great businesses and fix that economical issues here. If you're talking about policies, there's a one word: policies are so bad, not just bad, or policies are missing. So मैं एक बात सजेस्ट करूंगा, मैं पहले सजेशन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं दूंगा कि हाउ टू इम्प्रूव द पॉलिसीज, मैं सजेशन आप लोगों को दूंगा. Why don't you become a policy maker today? You decide that you will become a policy maker, and then I'll suggest governments, please stop electing policy maker and start selecting policy makers. See what we are doing. हम policy maker, अब अभी बदर साहब ने कहा कि मैंने कुछ recommend किया and I'm waiting कि उस पे अमल हो, अभी तक अमल नहीं हुआ. So what's the point? There are creative people, there are people who know the pain points of the industry. They are trying to do something, but somebody is stopping them. Who is that person and who is that guy जो उनको रोक रहा है? Basically उस point पे जिसके पास ultimate decision power है, वहां हमें high achievers बिठाने की जरूरत है. By high achiever मेरा मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने gold medal लिया हुआ PhD में, जिन्होंने US UK से PhD करके आए हैं और उनको आके हम कहें कि आ जाए. We all need people जो इस इंडस्ट्री से उठे हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ किया है, कुछ अचीव किया है, ग्राउंड अप खड़े हुए हैं और उनके अचीवमेंट को सब जानते हैं. उन लोगों को लाया जाए उस पोजीशन पे जहां आज बदर साहब खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि मेरी बात कोई माने और इंप्लीमेंट करे. इफ वी कैन डू दैट, सारे मसले हल हो जाएंगे. I'm trying to control myself, but see, ये यहाँ पे I'll be careful. But that's the once for all solution for everything. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. So I am an executive MBA candidate here and currently working with the Punjab IT board, heading one of their business tech incubator. So world over जो economy पिछले 20 साल से प्रोग्रेस की है ना, वो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पे है, विच इंक्लूड इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड द गवर्नमेंट. पाकिस्तान में अभी तक ये जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल इंप्लीमेंट नहीं हो सका. हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में अभी तक लगे हुए हैं. एफसी में बैठे हैं, एफसी के 1000 झगड़े अब तक HEC से चल रहे होंगे गवर्नमेंट के साथ. उसके अलावा मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम कब स्टेंजेंट हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाके क्या हो रहा है, हम लोग जो आगे मार्केट में आ रहे हैं ना, हम भटके हुए हैं, हमें कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है. Okay, can we come to the question now? So is anyone taking that? Is anybody answering it? This is something that we all need to play our part. Basically, when we are talking about these three major things, as I said, it's not all about government. Honestly speaking, it's not all about government. नीचे से start करते हैं. Let's talk about you people जिन्होंने अभी start करना है अपना career. तो आज आप क्या सोच रहे हो? Are you a problem solver या आप सिर्फ जॉब लेने की सोच रहे हो? Talking about businesses, हम अपने अकाउंटेंट को बुला के जो पहली इंस्ट्रक्शन देते हैं, मजबूरी है कि यार ये बता टैक्स कैसे बचाना, किस तरह से पे करें, कैसे पे करें कि गवर्नमेंट को पैसे ना देने पड़े. तो अब जब बिजनेसेस अपना रोल प्ले नहीं करेंगे ऑनेस्टली, तो गवर्नमेंट को तो वैसे ही बाउंड कर रहे हैं. अब ऑन द अदर साइड मैं देखता हूं कि जब मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं तो इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है. अब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही. जब मैं 1.3 मिलियन 2 मिलियन टैक्स में मेरा जा रहा है, मेरे सामने एक चेक आता है, मुझे वो साइन करना पड़ता है, तो मैं देखता हूं कि ये 2 मिलियन अगर मैं री इन्वेस्ट करता हूं तो इतने पैसे आएंगे, गवर्नमेंट को देता हूं तो गए बाहर में. तो प्रॉब्लम 3 जगह पे है. एंड व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं, और आप अपने आप से स्टार्ट करें, मैं यहाँ बैठ के अपने आप से स्टार्ट करता हूँ, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो भी मेहरबानी करें. बट जस्ट टू ऐड हियर, एक तो बिल्कुल बात सही है,
But I think as us as educated people, we need to actually make everyone accountable कि उनको को job क्या और उनका काम क्या और वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. I think we, and very respectfully, not in any wrong sense, but we need to make them realize कि आपका ये काम है, ये आपका scope है, you need to fix this, and you are appointed by the people of the Republic Pakistan कि आपने काम करना और इसको fix करें. And it's not an easy one. मुझसे असद ये पूछा था अभी break में, आपको बहुत effort करनी पड़ेगी. It takes years at times to get something fixed. कोई भी labor law change कराना है, कुछ भी कराना है. But एक तरीका जो सुनील ने बताया वो and totally endorse that. Sustainable तरीका तो यही है कि आप लंबे तरीके से जाएं, आपको हर कोई तंग करेगा, हर कोई रुलाएगा, बट अगर आपने कर लिया तो फिर कोई nobody can challenge you. मगर हमारा चैलेंज है कि हम बाईपास कर जाते हैं और हम क्वेश्चन नहीं करते. So that's the problem. We need to question कि आपकी ड्यूटी, आप PIA के काउंटर पे बैठे हुए हैं, आपका क्या काम है लाइन तोड़ के कोई आए और आपसे बोर्डिंग पास ले जाए. So if you start questioning all of you, every public office कि ये क्यों नहीं ऐसे सही हो रहा है, आपका काम है, we'll see things getting fixed very, very quickly. I think that's critical. So, अस्सलाम वालेकुम. बस मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिसी मेकर्स बनना चाहिए. उसमें एक कंफ्यूजन ये है कि हम लोग कारोबार करें या हम लोग पॉलिसी मेकिंग करें, ये कंफ्यूजन आ जाती है. नेक्स्ट थिंग इज कि बातें करना आसान हो जाता है हमारे लिए, लेकिन जब हम बिजनेस में स्टेप इन करते हैं ना, तो जब अदारे बीच में आते हैं, जैसे सर सुनील ने बोला है कि अदारे जब बीच में आते हैं, तो आई वाज स्टैंडिंग अदारों के अगेंस्ट, और अदारों के अगेंस्ट जब मैं स्टैंड कर रहा था तो द मार्केट वाज लाफिंग एट मी कि तुम यंगस्टर हो, यू विल अंडरस्टैंड कि ये अदारे तुम्हें. फिर जब मेरे पे FIR कटी ना, फूड बिजनेस के ऊपर FIR कटी मेरे ऊपर, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 25,000 पर मंथ पुलिस को देना पड़ेगा. तो फिर दुख होता है, जिस तरह सर ने भी बात की कि हमें इंटीग्रिटी सिखाई जाती है, लेकिन मार्केट में आके आप जितना लड़ना शुरू कर जाते हो, उसके बाद आपके ऊपर उतना प्रेशर आता है और आप कहते हो यार मैं कारोबार चलाऊं या मैं अपने आप को इनके साथ लड़ूं, इन अदारों के साथ लड़ूं. तो इन द लॉन्गर रन दुख होता है आपको एक छोटा स्टार्टअप होते हुए, एक छोटा बिजनेसमैन होते हुए, कि आप पहले 2 लाख कमा रहे थे, इन्फ्लेशन की वजह से आप 60,000 पे आए, उस पे से 25,000 रुपए सिर्फ आपसे एक अदारा ले जाता है. क्योंकि वो क्वेश्चन यही है कि You are more, what is practical? sharing your pain with us. Yes, what is more practical? हम लोग दुख ही होता है कि आप See, देखो, अब जैसे सर सुनील हैं, सर सुनील के अंदर जो एग्रेसिवनेस है, वो हमें पता है कि वो क्यों एग्रेसिव हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर के इन चीज़ों से चैलेंज होते हैं और वो उन चीज़ों से अभी तक लड़ते आ रहे हैं. वो अपने पोस्ट पे, अपने सोशल मीडिया पे, हर चीज़ से. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बोला है कि हम लोग इस अदारे से एक चीज़ अप्रूव करवा लेते हैं तो आप ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाते हैं, वो आपको और तंग करते हैं. वो अदारा आपको ये नहीं करता कि इसने इस चीज़ के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो आपको और लाइमलाइट करते हैं. तो क्वेश्चन यही है कि आपने आगे बढ़ना है या फिर आपने गिव अप करके पीछे बैक ऑफ हो जाना है कि यार. देखो, मैं पहले जल्दी से आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर कर दूं. एवरीबडी हियर जो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. जो आज आप सोच रहे हैं, जो आज आप बोलते हो, यू आर सेंडिंग सिग्नल टू योर ब्रेन. अभी इस भाई ने कहा कि हम काम करें या पॉलिसी मेकर बने. देखो, व्हाट यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट यू कैन नॉट डू इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. नो, आप जरा गौर से देखो, इस वक्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बदर साहब यहाँ बैठे हैं, आर वी एबल टू सजेस्ट गवर्नमेंट समथिंग? कुछ ना कुछ हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इसमें से कोई 1-2% हो जाएगा. कैसे पॉसिबल हुआ ये? बाय वर्किंग रियली रियली हार्ड, बाय बिलीविंग इन इट कि एक दिन आएगा लोग हमें सुनेंगे. वी हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग with the strong belief that एक दिन लोग आपकी बातें सुन रहे होंगे. But what you are telling your brain is this, ये क्या होता है? ये तो हो ही नहीं सकता. It's a frustration, it's a pain. Don't do that. Or I'm sitting in a millionaires, मुझे ये बात कहना पड़ रही है. मैं इस शहर में ऑफिस बॉय, टी बॉय से मैंने स्टार्ट किया, मैं गाड़ियां साफ करता था यहाँ पे. And today I'm able to add value on this such a large scale. So just keep going. Don't do that. Thank you. Mohammed Irfan.